Hello everyone and we welcome you all to the prep board. So this is the fifth video of innovation and entrepreneurship series and today we bring to you 20 another important MCQs. So guys, only 2 days are remaining for this very prestigious CMAT examination. So we wish all the best to all the participants and please watch this video till the end so that you can learn and take benefit from this video. So let's start this video with question number 1. A small scale entrepreneur is what kind of a company? जो small scale entrepreneur होता है, so is it a formal sector with 11 to 50 employees, 11 to 49 employees, 16 to 49 employees or 16 to 50 employees? So the correct option for this question is 11 to 49 employees. यानी कि अगर एक small scale हमारे पास में entrepreneur company है, so it will be having 11 to 49 employees. So you can note the correct answer. Let's discuss our question number 2. What are the policies that influence access to finance in context of innovative entrepreneurship? यानी कि what are the policies that influence यानी कि जो finance है उसका access को कौन सी policies जो है वो influence करती हैं? So let's see the options. So the options are debt financing, venture capital, business angels or all of the above. So the correct option for this is business angels. यानी कि जो business angels होते हैं वो influence करते हैं finance एक particular innovative entrepreneurship का. So you can note the correct answer for this. Let's move ahead. Angels usually provide which type of financing? यानी कि जो angels होते हैं वो किस तरह की financing को support करते हैं? So options are debt, equity, stock और none of these. So देखिए जो angels होते हैं वो debt में support नहीं करते हैं, stock में भी वो support नहीं करते हैं. Actually में जो वो funding करते हैं वो equity के लिए होती है. So the correct option for this question is equity. You can note that. The resistance of employees in an organization against flexibility, growth and diversification can be overcome by what? यानी कि अगर एक particular firm में हमारे पास में resistance face कर रहे हैं in terms of growth, in terms of flexibility, तो उसको कैसे overcome करेंगे? So देखिए ये जो बात हो रही है in an organization हो रही है यानी कि एक organization के inside ये हमारी बात हो रही है. So the correct option for this is इंट्राप्रेन्योरशिप बिकॉज जो इंट्राप्रेन्योरशिप होती है वो हमारे पास में इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की हम बात करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी. यू कैन नोट दिस. लेट्स मूव अहेड. बैंकर्स से दैट मोस्ट बिजनेस फेल बिकॉज ऑफ व्हाट इनएबिलिटी टू प्लान प्रॉपर्ली यानी कि कौन अच्छे से प्लान नहीं कर पाता जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं. सो ऑप्शन है इन्वेस्टर्स, मार्केटर्स, एंटरप्रेन्योर और कंसल्टेंट्स. So the correct option for this is entrepreneurs because इन्वेस्टर की मिस्टेक से, मार्केटर्स की मिस्टेक से या कंसल्टेंट की मिस्टेक से हमारे पास बिजनेस फेल नहीं होते हैं. मेनली जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी अगर अंडरटेकिंग में कोई हमारे पास में इशू है यानी कि उसने जो प्रोजेक्ट है उसको ढंग से अंडरटेक नहीं किया है देन एक पर्टिकुलर बिजनेस का चांस है फेल होने का. सो एंटरप्रेन्योर इज द राइट आंसर. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन गिवन फॉर व्हाई पीपल चूज टू बिकम एंटरप्रेन्योर यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है why do he want to become an entrepreneur? Either to make money, तो definitely वो money के लिए entrepreneurship नहीं करता है और वो corporate jobs में लंबे working hours से भी नहीं घबराता है. But the point is that they want to become their own boss और वो independent work करना चाहते हैं and they want independent work के साथ में ही वो थोड़ा सा contribution का भी उनका point of view हो जाता है. That's why they want to become entrepreneur ताकि वो अपना own के boss बन सके. So the correct option is C. Let's go ahead. What is the position of a firm on a continuum ranging from highly conservative to highly entrepreneurial? यानी कि अगर कोई फर्म बहुत ही हाईली कंजर्वेटिव से हाईली एंटरप्रेन्योर की तरफ शिफ्ट हो रही है तो वो हमारे पास में कौन सी पोजीशन है? तो आइदर इट इज रिस्क टॉलरेंस, एंटरप्रेन्योर इंटेंसिटी, इंसेंटिवनेस और ऑर्गेनाइजेशनल ब्यूरोक्रेसी. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल इंटेंसिटी. उसकी वजह से जो फर्म्स होती हैं हमारी वो हाईली कंजर्वेटिव से हाईली एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट होती हैं. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर, दैट इज बी. लेट्स मूव अहेड. फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स टू स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंक्लूड व्हाट यानी कि हमारे पास में कोई पर्टिकुलर फर्म है तो उस फर्म का हम अगर चाहते हैं कि फिस्कल और मॉनेटरी बेनिफिट हो तो उसमें कौन से इन्वेस्टमेंट हमारे लिए अच्छे रहते हैं? So either lowering the rate of interest, tax reduction, public expenditure, price policy and abolition of monopoly or all of the above. So the correct option for this is
ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो सारे मीजर्स हम लोग लेते हैं तो उसमें लोअरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, टैक्स रिडक्शन भी हेल्प करेगा, प्राइस पॉलिसी भी हेल्प करेगा, अबॉलिशन ऑफ मोनोपोली भी हेल्प करेगा। यानी कि जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं ये हमारे पास में इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करते हैं। सो ऑल दीज आर वेरी नाइस फैक्टर्स, गुड फैक्टर्स। सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर, दैट इज डी। Let's go ahead and discuss our next question. Which of the following factor has allowed small companies to act like they are big ones? यानी कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो स्मॉल कंपनीज को बिग कंपनीज की तरह वर्क करने का पावर देता है, और यू कैन से बिग कंपनीज की तरह थिंक करने का पावर देता है। तो एब्सोल्युटली कस्टमर्स नहीं करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वो हेल्प नहीं करता है, कंपटीशन भी हेल्प नहीं करता है। मेनली जो हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, एक अगर टेक्नोलॉजिकली कंपनी एडवांस है तो वो आपका बहुत जल्दी रैपिडली प्रोग्रेस भी करती है, और वो हमारे पास में एक जो हमारे पास में स्मॉल कंपनी है वो बड़ी कंपनी की तरह बिहेव भी कर सकती है। सो टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। लेट्स मूव अहेड। अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर इज व्हाट टाइप ऑफ कंपनी, यानी कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कैसे होते हैं? आइदर 0 to 10 एम्प्लॉइज, 1 to 10 एम्प्लॉइज, 0 to 15 एम्प्लॉइज, और 1 to 15 एम्प्लॉइज। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज 1 to 10 एम्प्लॉइज, यानी कि अगर एक कंपनी में 1 से 10 एम्प्लॉइज हैं तो वो माइक्रो इंटरप्रेन्योर में आएगा। और हमने अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर 11 से 49 होते हैं तो उसके बाद वो मूव कर जाता है हमारे पास में स्मॉल स्केल के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी। सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर। सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो कौन से फैक्टर को डिपेंड करती है? टेक्निकल स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी, और ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो यू कैन नोट दिस करेक्ट आंसर। What are the informal association of people who choose to come together to find way to improve their living condition? यानी कि अगर living conditions को improve करना है और उसके लिए group of people साथ में आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? Either we are talking about an NGO, तो definitely वो NGO नहीं होता है क्योंकि इसमें group बड़ा होता है। Private companies generally जो होती हैं वो profit के लिए साथ में आती हैं। So this is also उनका मोटो इम्प्रूवमेंट तो कहीं से भी नहीं रहता है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं रहता है लेकिन उतना लार्ज स्केल पे नहीं रहता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो हमारे पास में इनफॉर्मल एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। गाइस प्लीज नोट दिस करेक्ट आंसर। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट अस गाइस, आपका सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा इस समय रिक्वायरमेंट है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और एटलीस्ट अपने 2 या 3 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि अगर ऐसे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस बाकी लोग भी बेनिफिट ले सकें। लुक, दिस इज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये जो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देन इट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ऑल अवर स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज वी विल ब्रिंग वेरी गुड कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स। सो सबकी हेल्प होगी। सो प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी। लेट्स गो अहेड। व्हाट इज एस स्टैंड फॉर इन पेस्टल एनालिसिस, यानी कि जो पेस्टल एनालिसिस होता है उसमें एस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ई, एक्चुअली इसमें ई है। ई किसको रिप्रेजेंट करता है? आइदर इटर्नल, इकोनॉमिक, एलिजिबल और नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज इकोनॉमिक, यानी कि जो ई होता है वो हमारे पास में इकोनॉमिक को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स मूव अहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग, यानी कि इसमें से किसको हम कॉर्पोरेट वेंचरिंग भी कहते हैं? सो आइदर इन एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप, act of stating a new venture or offering new product by an existing company. So the correct option for this is entrepreneurship, यानी कि जो entrepreneurship होता है इसको हम corporate venturing भी कहते हैं। एंड तो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर। एक्चुअली देखिए, entrepreneurship डिफरेंट बिजनेस की बात कर रहे हैं और act of stating a new venture भी डिफरेंट बिजनेस की बात कर रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज entrepreneurship. You can note the correct answer. इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंसिंग इन एंटरप्रेन्योर्स करियर चॉइसेस एंड स्टाइल आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो इंडिविजुअल काफी सारे लोगों के करियर चॉइस में इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन होते हैं? आइदर दे आर रोल मॉडल्स, मॉरल सपोर्ट नेटवर्क, प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज रोल मॉडल। जैसे काफी लोग जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है उनको फॉलो करते हैं। तो ये काफ़ी लोगों के रोल मॉडल हैं। सचिन तेंदुलकर काफ़ी लोगों के रोल मॉडल हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, वॉरेन बफेट, वो काफ़ी लोगों के हमारे रोल मॉडल हैं। तो जो रोल मॉडल होते हैं हमारे पास में, जैसे बिल गेट्स हो गए, तो ये रोल मॉडल जो होते हैं काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर का
करियर चॉइसेस और स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं. सो रोल मॉडल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. वी नीड टू अपडेट द बिजनेस प्लान बिकॉज यानी कि हर 1 या 2 साल में हम बिजनेस प्लान को चेंज करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स. और गोल्स मे बी अनरीजनेबल, गोल्स मे बी नॉट मीजरेबल और मे नॉट बी स्पेसिफिक. तो देखिए इसका गोल से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं आएगा बिकॉज गोल्स हम डेफिनेट सी बात है कि अच्छे से प्लान करने के बाद ही करेंगे. लेकिन हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स कंपनी में चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमें बिजनेस प्लान को अपडेट करना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स मूव अहेड. एंटरप्रेन्योर्स टिपिकली फॉर्म व्हाट, यानी एंटरप्रेन्योर्स क्या बनाते हैं? सर्विस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कंस्ट्रक्टिव कंपनीज और वैरायटी ऑफ वेंचर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज वैरायटी ऑफ वेंचर्स बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर है वो सर्विस में भी लिमिटेड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में भी लिमिटेड नहीं है, कंस्ट्रक्टिव कंपनीज में भी लिमिटेड नहीं है, वो तो सारे काम करेगा. सो अ वैरायटी ऑफ वेंचर्स मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करेगा. एक अगर हमारे पास में एंटरप्रेन्योर है तो वो सर्विस के अंदर भी काम करेगा, वो हमारे पास में एक्सपोर्ट्स के अंदर भी काम करेगा. यानी कि मल्टीट्यूड ऑफ काम जो है, वर्क जो है, वो हमारा एंटरप्रेन्योर करेगा. सो डी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव अहेड. इन्फ्लुएंस ऑन इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन बेस्ट टाइपिफाइज एंटरप्रेन्योर फर्म्स. यानी कि जो इन्फ्लुएंस ऑन इनोवेशन है वो कौन सी टाइप की फर्म्स होती हैं? सो लेट्स सी द ऑप्शंस. आइदर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन लार्ज फर्म्स और इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. सो देखिए जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन में हमें हेल्प करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट. यू कैन नोट दिस. लेट्स मूव अहेड. व्हाट डज पी स्टेल इन पेस्टल, यानी कि पेस्टल एनालिसिस में पी किसको स्टैंड करता है? प्राइवेट, पब्लिक, पॉलिटिकल और पर्सनल. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज पॉलिटिकल. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर, दैट इज पॉलिटिकल. Let's go and discuss our last question for today. The small scale unit wishing to export has to obtain exporters code from which organization, यानी कि अगर एक स्मॉल स्केल कंपनी है और उसको एक्सपोर्ट करना है तो वो अपना लाइसेंस कहाँ से लेगी? आइदर आरबीआई से लेगी, सीबीआई से लेगी, रीजनल बैंक से लेगी या एनी इंटरनेशनल बैंक. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यानी कि जो कंपनी है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. Again, at the end, we would like to request you to please like, comment, share, and subscribe to our channel. And if you have any particular query regarding upcoming CMET examination, you can contact us on below given numbers. And we wish all the best to all our students. We wish कि आपका जो CMET का एग्जाम है वो बहुत अच्छा हो और आप बहुत अच्छे मार्क्स CMET के पेपर में स्कोर करें and you definitely get a very good college through CMET. All the best to everyone. Thank you very much.